Hello, hi everyone. Today we have with us Raj Vedya. Raj Vedya got 85 percentile in CET. I know it's not something to be proud of, but ये वीडियो का रिकॉर्डिंग का आज मतलब ही ये है. राज, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट टू मोटिवेट एवरीवन कि भाई सीईटी में स्कोर अच्छा आया तो वेरी गुड, स्कोर में अच्छा ना भी आया तो भी तुम लाइफ में कुछ ना कुछ तुम अच्छा कर ही लेंगे. उसका लाइव एग्जांपल इज राज. So Raj have done his MBA from VBS, Vivekanand MBA College, Vivekanand Business School, Chembur. So Raj, welcome to the group. Before we start about all these things, we are around 60 students live with us. They can ask you a question in the second half. I want to start with your background first, where you're from, and apne, before you join Vivekanand, what is your background? So, if you are asking me my locational background, then I've been born and brought up in Mumbai, and I've been a Mumbaikar by heart, core. And if you're asking on academical level, yes, I did my schooling from Chhatrapur Nursery School, post which I graduated in BCom from NM College, Narsi Monji College of Commerce and Economics. And later on, then I have done my MBA from Vivekanand Business School. Correct. And as mentioned, I've got 85%, which is not really great proud of in CET. And yeah, so that was it. अभी my first question revolved on that only कि जब 85 percentile आया तो what was the first thing on your mind के यार छोड़ दो, एक ऑप्शन बोल रहा था कि एमबी छोड़ दो, बकवास है सब, दुनिया बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है. That is one option people think. And second is कि भैया डू और डाई है, ये ऐसा एडमिशन चाहिए, अच्छा करेंगे, या people go for अगले साल अपन तोड़ के आएंगे. So what was going on in your mind? So मैंने CAT भी दिया था. Which I had given CAT as well prior to CET also, and I scored close to somewhere the same percentile, which was 84 something in CAT also, and then CET भी 85. So the point was कि at that moment when the result comes in, that point you feel like you feel that downflow, because you don't feel like this is not going to be something where I can get an extraordinarily great college, or you're going to go to JBIMS or SPJ or the IIMs or something. JB नहीं जा रहे हो, IIM नहीं जा रहे हो. हाँ, so you get that कि भाई, but then you need to realize the practicality of it, because you need to understand your own caliber, and then you need to build on that caliber. So for example, for me, I was good at math and logic, but I was not that great in English. And so my percentile took a hit in that. So my English was not good. So it depends on how you take on your caliber. That is one aspect of it. And practically वो सोचना पड़ता है कि every year you start giving कि भाई चलो I'll try next year, चलो I'll try next year. That doesn't make sense, because somewhere you'll have to stop. It takes in years of your life, which is crucial. That age between 20 to 30 is somewhere you can grasp as much as you want, and wo boost is very important. So if you keep delaying stuff like ek aur saal, one more year, let's try something new, let's divert from MBA and do something else, then the first question is what else? Exactly. मैं अपनी बात अगर बोलूं, भाई मेरी तो जिंदगी वैसे बेकार थी. एमबीए से पहले लाइफ वाज हेल, तो जिंदगी झंड पहले भी है. तो भाई ओनली थिंग व्हिच वाज गुड वाज कि एमबीए कर लो, शायद कुछ इज्जतदार कॉलेज, इज्जतदार कुछ जॉब लग जाए. So this is where I come from. Yeah, so that happens कि एक तो I'm one of those students, to be honest, कि जो 10th में मेरे को 93% थे, and I was like booming up and stuff. And then जैसे college में आया, and you get that freedom life and something new kind of environment around you, and then you're like फिर पढ़ाई साइड हो जाती है. वो एक साइड ट्रैक हो जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब you kind of get sidetracked, so it is difficult to get back. And I was not someone who was very much academically inclined, so I don't feel like कि मैं बहुत पढ़ाई कर सकता हूँ. Otherwise NM से हूँ तो मेरे आजू बाजू तो 90% people are doing CA, but then that is something which is I'm not academically inclined. So आपको वो समझना पड़ता है कि आपको क्या चीज करना है. And MBA is much more of a practical course than academic. Even if you go to, मैं SP Jain वालों को भी जानता हूँ जो मेरे साथ अभी Morgan Stanley में है, who are working with me together. I know people from IIT and IIMs because I am at that kind of a company. They have learned the same thing that is taught everywhere. It is not something different that is taught. Yeah, the quality of life, the quality of students, the quality of professors, and the quality of the college entirely, yes, of course, it is mind blowing when you go to some place big. यहाँ पे आके मैं रोकना चाहूंगा कि यार
कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर कॉलेज में प्रोफेसर भी सेम है। I हाँ have been to JBIMS, I have been to your college as well, I've been to IIM Ahmedabad also, सब जगह टीचर एक टाइप के टीचर हैं। मैं तो पॉलिटिकली करेक्ट जा रहा था सर। नहीं नहीं नहीं, वो भाई तुम हर यार 80 हर जिसने आपने कॉलेज में भी देखा होगा, अपने कॉलेज में भी व्हेन यू डूइंग अंडरग्रेड, कि हर कॉलेज में 20% टीचर ऐसे होते हैं जिनका लेक्चर बैठने में मजा आता है, बाकी रिमेनिंग एक्चुअली 80% होता आपको है कि गिनना पड़ता है। सो कैसा होता है कि यू जस्ट नीड टू फाइंड कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो मुझे पसंद है और ये एक पर्टिकुलर प्रोफेसर है जो मुझे पसंद है। करेक्ट एंड करेक्ट करेक्ट पॉइंट इन एमबीए इज कि आप कभी भी जाओगे ना, द ओनली थिंग इज यू नीड टू ड्राइव योरसेल्फ, दैट लाइक स्कूल तक या कॉलेज तक टीचर्स आपको पुश करते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, पेरेंट्स आपको पुश करते हैं। बट व्हेन यू आर डूइंग एमबीए यू आर एट द एज ऑफ 23, 24, 25, that is when you're starting approximately. So you don't get that push from parents or from faculties or professors or mentors anywhere around. आपको खुद करना पड़ता है। You need to करेक्ट give करेक्ट your own thing. तो फिर आप कोई भी कॉलेज से करो, क्योंकि गूगल तो गूगल है, चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी है, फिर कहीं पे भी कोई भी कोई भी कर क्वेश्चन सकता पूछो है। आंसर तो वही देने वाला है वो। करेक्ट करेक्ट। तो समराइजिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन के, जब ये सीईटी का जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें सिंपल भाई लोग तुम दो में से एक उंगली पकड़ो। अगर तो डू और डाई है, ये साल एमबीए करना है, तो टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में चुपचाप एडमिशन ले लो, एंड देन लाइफ में तुम आगे जाके यू कैन बिकम राज। ठीक है, यू आर द रोल मॉडल फॉर एवरीवन राइट नाउ। थैंक यू। या दूसरा ऑप्शन है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ये साल अच्छे से नहीं दे पाए, या तुम्हारे में रुकने की हिम्मत है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, देन गो फॉर द नेक्स्ट ईयर का थिंग। Yeah. Right. So तो ये दोनों में से एक उंगली एवरीवन हैव टू होल्ड, बिकॉज yes, बिना एमबीए के correct. वैल्यू है ही नहीं, वो स्टेज निकल चुका है, यू हैव टू डू इट नाउ काइंड ऑफ थिंग फॉर दिस पीपल Yes. राइट नाउ। Yes. So if you ask me, I would suggest on a personal level that you should take the option one, which is do or die. You do it because it doesn't really matter आप कहाँ से करते हो, कैसे करते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपका कैलिबर है कि आप कर सकते हो, तो आपको लेट्स से 3-5 लाख की भी जॉब मिलेगी, लेकिन आप 4 साल में 15-20 लाख तक, 25 लाख तक भी पहुंच जाओगे। So that is करेक्ट your own करेक्ट caliber itself. Second, you can take the second option because CET, CAT, these CET exam is how good you were on that particular day. It doesn't matter आपने कितना पढ़ाई किया, अगर वो दिन बहुत खराब हुआ तो आप खराब थे। So if you are 100% sure, which everyone knows in their heart, कि उनको कितने मार्क्स आ सकते हैं, सबको पता रहता है कि भाई मैं अगली बार भी दूंगा ना तो मुझे लगता है 2-3% बढ़ जाएंगे, लेकिन वो 2-3% के लिए अगली बार मत दो। इफ यू आर श्योर कि आप 10%, 15% एक्स्ट्रा कर सकते हो, लाइक आपको इस बार 80 आए हैं और आपको पता है कि आप 96, 97 पहुंच सकते हो बिकॉज यू आर बैड ऑन दैट डे, then yes, it makes sense to go for the second option. Otherwise, I would say always take the first option because it is you will always have a next year. Next year will always be there. करेक्ट You will have to make a stamp somewhere or the other. वो कहीं करेक्ट ना कहीं तो रोकना पड़ेगा आपको। करेक्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर थिंग। सो सेकंड पार्ट इज, अभी आप मॉर्गन स्टैनली में आ जाओ। सो नाउ यू हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 3 years, right? You are 2020 Yep. मार्च पास आउट। I completed 3 years in March. Yes. 3 years आपने कंप्लीट कर लिया। Yeah. तो 3 साल के अंदर पैकेज कितना बड़ा है? ऑलमोस्ट डबल हो गया कि ट्रिपल हो गया कि वहीं के मेट के पड़े? यार जिंदगी झंड है, एमबीए के बाद भी पहले भी झंड थी, नहीं बाद में भी नहीं झंड नहीं। है। व्हाट यू फील इज द करेक्ट नंबर? So if you ask me, from the day that I've started, it has increased by around 140, 150 odd percentage. So that is more than double of what I was earning 50% in हाइक इज गुड। March. हाँ So I wouldn't give you the exact numbers, sorry. नहीं नहीं, आई डोंट, But yeah, दैट्स व्हाई so आई it डोंट is, वांट द नंबर, दैट्स मैंने पहले yeah, बोला कि so it has परसेंटेज की increased बात by, करो। yeah, did 150%, I think did 1.5 times of what you were earning. So I think that makes sense. And yes, the issue that I have faced, that we in our batch people have faced, is the post COVID trauma that is happening in financial industries. सबको पता रहेगा कि layoff चल रहे हैं, the companies are not doing well, be it Morgan Stanley, be it JP Morgan, be it Goldman Sachs, whichever company you go to. अभी Correct. क्रेडिट स्विस जैसा कंपनी बंद हो गया है, तो इट डज अफेक्ट द इंडस्ट्री आल्सो। सो एवरीवन, राइट। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका सैलरी कभी ना कभी अप डाउन होता है, डाउन तो कभी नहीं होता है, बट आपको वो हाइक एक्सपेक्टेड कभी कभी नहीं मिलता है, जैसे मुझे लास्ट ईयर नहीं मिला था। बट एक्सपेक्टेशन इज समथिंग एल्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हो रहा है। बट इफ यू jot down to a percentage, then it's 150% of what I was earning in March 2020. That's
how would I say? करेक्ट सो 50% हाइक हम लेके हाँ, हर साल आपको एक एवरेजली वैसे हाइक मिलता है। अभी Correct, जिस साल correct. प्रमोशन रहता है उस साल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीमेंट मिल जाता है। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको कम मिल जाता है। करेक्ट तो आप कैसे स्टार्ट करते हो उसके ऊपर भी है, आपको कितने पैकेज पे स्टार्टिंग मिला है, कैसे मिला है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट यार देखो अपनो वही जो मैं नॉर्मली कहता हूँ, तुम किसी भी एमबी कॉलेज में जाओ, वंस यू गेट अ जॉब देन Yeah. एवरीवन सिटिंग ऑन दैट फ्लोर हैव द सेम कैलिबर। अभी जिसका कैलिबर सेम काइंड ऑफ अ लेवल, अभी जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे जाएगा, सीधी बात है। एब्सोल्युटली, मेरे बाजू में जो बंदा बैठता है वो आईआईटी खड़गपुर से और आईआईएम कलकत्ता से है। The person sitting right next to me, and I am from VBS, so it doesn't really matter because at the end of the day you're all same. Yeah, obviously उसका package बहुत अलग रहेगा, might be earning much more. I mean it's different. I agree, his work is different, but at the end of the day you're treated as equal employees. It's not something कि आपको down watch करेगा कोई या ऐसा कुछ करेगा। Probably I am working in one of the largest companies, so that really affects. The work environment is something different Correct. that I have. That also does matter. बट टू एन एक्सटेंट आप कहीं पे भी कोई भी कंपनी में जाओ, आपको सब मिल सकता है अगर आपका वो जेस्ट है तो। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू विल। इट डजंट रियली अफेक्ट कि आपको सीईटी में कितने मार्क्स आए, आपको 60% भी आ सकते हैं, आप कोई कॉलेज से एमबीए भी कर सकते हो एंड यू कैन लैंड आफ्टर, यू नो, career is not something which is 2 to 3 years. Which I have understood, which I have gone to Morgan and understood that जो आप किसी से भी बात करो ना, जो एमडी लेवल पे है या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो लेवल पे है, वो लोग वही बोलते हैं कि करियर 1 2 3 साल का चीज नहीं है। आपको 4 साल एक भी हाइक नहीं मिलेगा, लेकिन 5वें साल में इतना हाइक मिलेगा कि आपको 300% मिल जाएगा। तो इट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू लुक एट अ वेरी लॉन्ग टर्म लेवल। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सीईटी एक दिन का जो रिजल्ट है उसके वजह से मेरा करियर डिफाइन आउट हो जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। That is not something that ever will happen to anyone. Yeah, it could be a game changer for you, surely, but it cannot be a defining moment. So I feel कि आप कोई भी कंपनी में चले जाओ, any random any company, let's say XYZ or ABC company limited, whatever you go to, it's your caliber that matters. Companies आपको evaluate सिर्फ performance पे करती है और किसी चीज पे नहीं करती। Perfect. So true. Very true. Very true. Yeah. Okay, we move to third part now. During your MBA days, we got the first question here from Harshali. What specialization you did your MBA from? So I did my MBA in finance, specialized in finance, and I particularly chose derivatives in finance as a field. So I have been working in trade management group in Morgan Stanley. So I'm very much close to structured products and, you know, that kind of OTC market, which deals in on the Asia level. But derivatives in finance was something that I opted for because I had a keen interest in it. So that is something I did my specialization. NISM का दिया था, एग्जाम दिया था, एंड इन योर कॉलेज तो आपके यहाँ तो एग्जाम है ना, तुम तो VBS इज फेमस फॉर ऑल दीस थिंग्स के ये NISM के सारे एग्जाम देते जाओ। डेरिवेटिव का मैंने एग्जाम दिया था, पास भी किया था, ऐसा नहीं पास नहीं किया, लेकिन क्या पढ़ा क्या लिखा हुआ था, आई कुडंट राइट ऑन द रिज्यूमे आल्सो। बोलेगा कौन यार, इतना एग्जाम कौन देगा, इतना कौन लिखेगा। So how the college helped you to face what was obviously when you enter the college you were a child, not a child, you were a young boy, you were raw gem. तो क्या क्या चेंजेस आएगी, या मैं एज अ स्टूडेंट एज अ MBA कॉलेज क्या क्या एक्सपेक्ट करूं, मेरे में क्या चेंज, व्हाट द कॉलेज कैन ब्रिंग इन? So I will answer specifically to my college because that is the only site that I have of and the experience that I have of. In VBS मुझे जो मिला was one, faculties do help you if you go to them, if you approach them, they are very much helpful. वो आपको एक पाथ दिखा सकते हैं कि भाई आप ये बुक्स पढ़ो, भाई आप ये पढ़ो, सर ये आप ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसके ऊपर रिसर्च करो, इसके ऊपर पेपर पढ़ो. This is something that you to indulge in. I was honestly after the first year I was confused कि मुझे core specialization HR लेना चाहिए या finance, which is two very separate fields. I was kind of confused, but then you get that kind of an environment where people are ready to help you. You do get approached from faculties when you are confused, and I took finance. मैंने core इसके लिए लिया because I don't know, it is something which is from inside कि भाई मुझे ये करना है, मुझे इसमें पसंद है, मुझे वो ऑप्शंस और फ्यूचर्स और वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में, उसको स्ट्रेटेजाइज करने में मुझे मजा आता है, मुझे मार्केट्स रीड करने में और वो सब, आई जस्ट एंजॉय डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ।
correct, So correct. that is something that I did. And Vivekanand helped in the sense they help you. मतलब वो पता है ना, एक अपन मिट्टी का पहाड़ बनाते हैं, सैंड कैसल बनाते हैं ना, तो विवेकानंद वो है कि वो गीला हाथ लेके आएंगे और उसको कॉन्क्रीटाइज करेंगे. They don't really make it for you. No one makes it for you, because in MBA you are old enough to make it for yourself. But they do really help you and guide you how to do it and what should be done. यार यही एक अच्छे कॉलेज और एवरेज बेकार कॉलेज में यही फर्क है कि तो फैकल्टी इवन तो पढ़ना आपको एंड ऑफ द डे, बट हाँ. वो जैसा आपने बोला एक जो सपोर्ट होता है ना कि यार मेरे पीछे खड़े हो, हाँ. बस मुझे Correct. गाइड कर वही दो, चाहिए. रास्ता दिखा दो, करने तो मैं ही वाला हूँ. हाँ, वही चाहिए. बट एक ही बस फर्क है रास्ता. सर, एक ही फर्क है जो मैंने देखा है कि, और काफी अदर बच्चों में, कि आप हिचकिचाना नहीं है कि मतलब मैं जाके उनसे बात कर सकता हूँ. एवरीवन इज अप्रोचेबल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर पुटिन आई थिंक, बट आई थिंक एवरीवन इज अप्रोचेबल. तो सॉरी आप उनसे जाके बात कर सकते हो. जैसे ही आप बात करोगे वो आपको 100 चीज बताएंगे. 100 में से आपके काम की कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, बट 100 चीज बताने वाला कोई चाहिए, वो आपको करेक्ट, कॉलेज में मिल जाता है. So you need करेक्ट, to go and ask, and then you will get it. करेक्ट, करेक्ट. वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन. हाउ Yeah. इज योर वर्क लाइफ बैलेंस नाउ? मतलब आर यू वर्किंग 40 आवर्स So अ वीक या 80 आवर्स अ वीक? so गर्लफ्रेंड के लिए टाइम है कि भाई जिंदगी पहले भी झंड थी, जिंदगी एमबीए के बाद भी झंड होने वाली है? नहीं सर, एक्चुअली मेरा एमबीए में आई थिंक रफली मैं 12 घंटे बिताता था कॉलेज पे. मैं कॉलेज के बाहर जाता ही नहीं था, मैं पढ़ा रहता था. लाइक कहीं पे भी हो, फिर कैंपस के बैकयार्ड में हो, क्रिकेट खेलते हुए, या फिर लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च करते हुए, या फिर कैंटीन में दोस्तों के साथ चिल करते हुए, कुछ भी हो, मैं 12 से 13 घंटे, हम लोग, वी वर अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल 6 पीपल, एंड वी यूज्ड टू स्टे इन कॉलेज फॉर 12-14 आवर्स अ डे. So उसके बाद जब भी, if you're asking particularly work life, so that is reduced. Now, Morgan now, Stanley, talking about now after MBA. yeah, so Morgan Stanley is something जहाँ पे वो लोग वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा अचीव करते हैं. Like my working hours are 50 hours a week, 45 to 50, which is 45 being minimum, but 55 हो जाता है, which is 10 hours a day. And because I am at the front office work, it is 10 hours. But 10 मतलब 10 घंटे. ऐसा बहुत रेयरली होता है. गिन लीजिए कि साल में 5, 6, 10 दिन होंगे जिसमें मुझे 12 घंटे काम करने पड़ रहे. अदरवाइज मैं सुबह 7 बजे चालू करता हूँ, मैं शाम को 5 बजे बंद करता हूँ, तो 5 के 5:10 को मैं ऑफिस के बाहर होता हूँ. So it is not something that, so particularly for my company, because I joined as a fresher in Morgan Stanley and I've been with them itself. There is no other company that I've been to. My work-life balance has been as good as possible, which I can achieve. 9 hours of work, 10 hours of work every day is the maximum that you have to do. It will not go beyond in Morgan Stanley. I do not know of other companies. Yes, I have heard from my friends कि दोस्त बोलते हैं कि भाई मैं 14 घंटे 16 घंटे, भाई ये लोग ने मार दिया, मेरे को लगता है मैं इधर ही सोना चालू कर दूंगा. वो मैंने बहुत सुना है, बहुत कंपनीज पे होता है, बट फॉर्चुनेटली टच वुड मेरे कंपनी में मेरे को ऐसा अभी तक 3 साल में नहीं हुआ है. सो आई हैव बीन, and yeah, Saturday Sundays are off, and you have I have around 23 leaves a year, which is paid leaves, and 12 holidays additional. So which is like you work for around 220 days a year, which is fantastic. So it has been great in that perspective. My work life balance has been amazing for me Right. till now. सुपर सुपर. वो यार मेरा जो है, मेरा जो नॉर्मली आंसर था, आप अगर कॉलेज में भी देखोगे यार, तो देयर आर सम पीपल हु कैन डू द प्रोजेक्ट वर्क इन 1 day, some people like 2 days, some people Yeah. नहीं सर एक्सटेंड कर दो. That depends on very much up to the individual as well, वो कितना एफर्ट Correct. डालना चाहता है. Absolutely. Bang on. Yeah, that does affect कि आप, but हाँ, उसमें कैसा होता है कि फिर जब भी आप जॉब में जाते हो तो वो आपके परफॉर्मेंस में अफेक्ट करता है कि आपको काम हमारे कंपनी में 9 घंटे का ही देते हैं, लेकिन अगर आप 9 घंटे में आप जितना काम कर रहे हो, उतना ही काम कोई दूसरा बंदा आके 6 घंटे में कर सकता है, तो आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पैसा वो कम मिलेगा. वो कम हो जाता है because you are performing on a lower level. So Correct, yes, that correct. affects. So you need to be up with the standards of what the company wants and what other people in the company are doing. So Correct. आपको वो rigorous effort होता ही है. It does feel कि बाहर से सब गुड़ी गुड़ी लगता है, but अंदर से you need to be on your toes. क्योंकि हम लोग, I mean, if anyone out of these 85 students that I see now, 86 participants,
अगर किसी को फाइनेंस मार्केट में या डेरिवेटिव्स मार्केट में जाना है, ये ओटीसी मार्केट है। यहाँ पे अगर 1 मिनट भी आप लेट हुए तो क्लाइंट कोई और कंपनी के पास चला जाएगा, और अगर चला गया तो आपका बिजनेस हाथ से गया तो आपको कंपनी नहीं रखेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ ठीक है, मैंने 3 घंटा काम किया, मैं 2 घंटा चिल करके आता हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स कि भाई आप कैसे काम कर रहे हो, एंड लाइक यू सेड वेरी राइटली कि किसको कितना टाइम लगता है, वो इंडिविजुअल बेसिस पे है। इट इज प्योरली इंडिविजुअल बेसिस पे। Correct, correct. So, Raj, lot of people are asking me about your contact details. Can you share your LinkedIn का profile दे दो? हाँ, तो अगर आप help sure. कर सकते तो. You can search Raj Vaidya, my name, which is in Zoom, that you can search, and you will get my photo in yellow t-shirt. तो Too वो easy आप बोल देख रहे सकते हो, and I'm at Morgan Stanley, and I'm working with the Institutional Equities Division, TMG Group. तो वो सब आपको दिख जाएगा मेरे Great, LinkedIn great. प्रोफाइल में, बस so you मेरी can बच्चों surely से एक send it. रिक्वेस्ट है कि वहां जाके ये मत पूछना कि सर मैथ्स कैसे इंप्रूव करूं या वर्बल कैसे इंप्रूव करूं, बिकॉज इसको खुद को एमबी के 5 साल हो चुके हैं अभी. So, 2018 CET 2018. मैं आपको एमबीए के दौरान और एमबीए के बाद थोड़ा बात क्या मेंटोरिंग है दे वो कुछ सकता हूँ, करो. उसके पहले मेरे को इतना नहीं मालूम सर। मैं एकेडमिकली अभी कोई भी ऑब्वियसली टाइम पे तो एवरी हो गया यार. स्टूडेंट हु इज लर्निंग एकेडमिकली, मैं आपको पढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकता। आई थिंक करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. सर इज द बेस्ट पर्सन टू रीच आउट टू as far as I बट ही कैन understand, गाइड but यू I वेल. cannot academically help you. But yeah, if you want mentoring and stuff, I do still do it at colleges, वाह सुपर. at my college itself as well. I do reach out to people, and there are students who do reach out to me. अभी कल ही एक लड़की के साथ बात हो रहा था who wanted to get into MBA VBS, हाँ बेटा, who I think who got a लड़कों call. से बात तो करेगा ही तो. लड़कों से बात करो कर लिया करो. I'm just अरे joking, लड़कों I'm से just joking, I'm just joking, please. एक नहीं लास्ट नहीं, क्वेश्चन लड़कों से मेरे भी पास बात है जो. करता हूँ, लेकिन लड़के अप्रोच नहीं करते ना। अभी क्या करें, किस्मत हाँ वैसी है। वो मैं देखो, गर्ल्स के डाउट ज्यादा होते हैं. नॉर्मली गर्ल्स आर मोर टेंस्ड अबाउट देयर करियर की क्या करूं क्या ना करूं क्या ना करूं. बॉयज देखा हाँ, जाएगा, एमबी में जाके देख लेंगे जो भी. और हाँ हाँ हाँ, और मैं लड़कों लड़कियों को दोनों को इक्वली दूंगा। मैं शादीशुदा हूँ सर। अरे चलो बेटा, जान दो भाई, छोड़ दो बेटा. सॉरी गर्ल्स इन द ग्रुप इज ऑलरेडी टेकन. अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन. अभी इनको जॉइनिंग से पहले 2 महीने का टाइम है. यू आल्सो सीन दैट कैप राउंड कब होंगे, डेटा वेरिफिकेशन, वो करेक्ट डॉक्यूमेंट करेक्ट वेरिफिकेशन करेक्ट लेके. करेक्ट। आई थिंक सो जून एंड जुलाई आ जाता है। जुलाई अगस्त तक जाएगा. 3 महीना है इनके पास. 2 महीने तो मिनिमम है ही है. जून जुलाई पूरा है इनके पास. हाँ हाँ हाँ। तो एनीथिंग दे कैन डू राइट नाउ. I would suggest gain soft skills. Soft skills in the sense you can go for something which is related to your work, like anyone going for marketing or finance, या operations, या वो सब चीजों में Excel and macros in Excel is very much used everywhere. VBA macros Excel में जो रहता है, which is an advanced level of Excel, very high advanced. So वो आप Excel में build कर सकते हो. दूसरे soft skills होते हैं, अगर आप HR में हो या फिर फ्रंट ऑफिस मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स. प्रेजेंटेशन इन द सेंस माइक्रोसॉफ्ट में पीपीटी बनाना नहीं होता है. पीपीटी कोई नहीं देखता है. आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो, हाउ डू यू वर्बली टॉक ऑन इट, हाउ मच डू यू टॉक, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, दैट काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डेवलप. एंड and I would suggest, if possible, anyone who is interested, you should learn languages, because today the world is a global village. तो languages जितनी ज़्यादा आपको पता रहेगी, non-Indian languages I specifically say, apart from Sanskrit, because if you are good in Sanskrit, it does help you gain knowledge in every other language very fast. So that is one thing, and you can learn that kind of stuff. So these are the 3 things that I can narrow it down to on your presentation skills for people who are going for marketing and stuff like that. कोर सेल्स जॉब है, ऐसा कुछ अप्रोच करने की सोच रहे हैं, तो अगर फाइनेंस वगैरह के लिए जा रहे हो तो आप एक्सेल सीख सकते हो. ऑपरेशंस, फाइनेंस, ये सब में एक्सेल का बहुत ज्यादा काम आता है, मैक्रोस वगैरह. एंड लैंग्वेज इज समथिंग व्हिच इज गुड फॉर एवरीवन, सो इट इज समथिंग दैट यू शुड एंड यू मस्ट, इफ पॉसिबल फॉर यू गाइस. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो मेरी भी सबको एडवाइस है यार, तुम्हें कॉलेज में जाके सब कुछ मिलेगा यार. तो देयर अपॉर्चुनिटी, देयर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन द कॉलेज. आपको एक्स्ट्रा करोगे में ध्यान देना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, हर चीज करने को मिलेगा. द ओनली एंड थिंग व्हिच यू कैन ब्रिंग इनटू द कॉलेज इज योर कॉन्फिडेंस. एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस है तो तुम सब कर लोगे. करेक्ट अंग्रेजी भी सीख जाओगे भाई, वो भी कर लोगे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अंग्रेजी क्या सर, स्पेनिश फ्रेंच सीख जाते हैं, कॉन्फिडेंस होता है तो. एंड ग्रेट या सो ग्रेट. कॉलेज में आई वुड सजेस्ट कि एकेडमिक्स पे आप ध्यान दो, but academics should be 50 to 60% of your focus. Rest 40% should be on
your soft skills, and in any and every way that you can build. आप कोई कॉलेज का फेस्ट ज्वाइन कर लो जिसमें आप मैनेजमेंटल स्किल्स ले रहे हो, कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपके नीचे 10 जन काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स को कैसे हैंडल करना है, वो जो ऑन पॉइंट प्रेशर रहता है वो आपको आगे जाके बहुत काम आता है, कि you know in the future 5-7 years down the line you might be handling a team of 10 people and then you have to do that. So Correct. those kind of skills is something that you can achieve in MBA. In every college it is available, क्योंकि हर एक कॉलेज का कोई ना कोई फेस्ट होता है, कुछ भी होता है। करेक्ट करेक्ट प्रेजेंटेशन आपको कॉलेज में बहुत देने पड़ेंगे, मिलेगा। और दूसरा वो बहुत अच्छा भी है क्योंकि कोई नहीं सुनता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो सब पीछे सो रहे रहेंगे, तो वो आपको जो सामने है वो आपको अच्छा भी मिलता है, बट या यू कैन डेवलप दोस काइंड ऑफ, बिकॉज यू हैव 2 months, यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट देन अदर पीपल, so that you can grow more than others. So Right. college में सब कुछ है, जैसे आपने बताया सर, you absolutely right, everything is मिल available जाएगा। at college, you just have to go and ask and find it. हाँ, वो तुम्हें वो- करना पड़ेगा, राइट। वो तुम्हें हाँ, कोई स्कूल में कोई जैसा ना आके कि नहीं देगा मम्मी चेक आपको, कर रही है, मैडम चेक कर रही है, वो खत्म हो गया, वो भी खत्म कोई हो नहीं, गया। कोई नहीं, कोई आके नहीं देगा आपको, आपको आगे खुद देख, करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मैं नहीं जानता कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एमबीए कॉलेजेस एनी स्टूडेंट हैज फेल्ड। आप पैसे देके केटी में पास हो सकते हो, क्योंकि आपको 4 बार केटी दिलवाएंगे लेकिन पास करके ही छोड़ेंगे, 2 साल में कोई रिपीट नहीं करता है, सब पास होते हैं, लेकिन सबका कैलिबर अलग रहता है। आपको अगर ऊपर के निकल, आई मीन यू वांट टू बी द क्रीम ऑफ द केक, देन यू दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू विप। कोई विप करके आपको बनाएगा नहीं, आपको खुद विप होना पड़ेगा। So that is something that you'll have to go for it. परफेक्ट, ग्रेट यार। तो थैंक यू यार, थैंक यू वैद्या, थैंक यू वेरी Most मच फॉर welcome. टॉकिंग टू अस। Most welcome. And anyone who wants to reach out can reach out to me on LinkedIn. My name is Raj Vaidya. You can surely reach out. मैं 2-3 दिन के गैप में शायद रिप्लाई दूंगा, बट रिप्लाई दे दूंगा, that is for sure. सुपर, ग्रेट यार, थैंक यू, बाय बाय। Thank you everyone. Thank you. I'll leave now. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Bye.